फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल क्या होती है? क्या होती है? Means it is any object which is thrown with some initial velocity and that followed a curved path, उसको हम प्रोजेक्टाइल कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कॉइन है, उसको हमने टेबल से ऐसे फ्लिक ऑफ कर दिया, वो ऐसे करके जाएगा, सीधा नहीं जाएगा. वो अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट वी गेव टू इट, उसके इफेक्ट के अंदर वो कर्व्ड पाथ फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा. ठीक है. एंड another example is a football, kicked football, तो वो एक parabolic path follow करके जाता है. So any object that is thrown with some initial velocity and that follows a curved path is called a projectile. So in this case this coin is a projectile and this football is a projectile. तो हम horizontal projectile कर रहे थे. Horizontal projectile. So there is a term time of flight related to it. Time of flight t. This is a coin flicked off with a velocity u from a height h from the ground, and it follows a curved path and hits here on the ground. Suppose this is point B. ठीक है. फाइन. दिस इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. क्लियर है आपको? कल हमने ट्रेजेक्ट्री निकाली थी, वो चलो हो गई. अब हम निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? +1 a. एनी वन ऑफ यू, व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? आर्यमन, आर्यमन, विल यू डिफाइन टाइम ऑफ फ्लाइट? यस. रिद्धि आप बताओ. Ma'am, time for which the projectile remains in the air. Yes, very good. It's the time taken by projectile to complete its whole journey, or time for which the projectile remains in the air, that is called time of flight. Total time जो उसको लग रहा है. ठीक है. Let us derive an expression for it. हाँ जी. ग्राउंड पे गिरने से पहले एयर में ही था ना, तो जब ग्राउंड पे गिरा बस खत्म, वहां तक का टाइम नोट कर लिया, उसमें वो आ ही जाएगा ना. So let us use s equal to ut plus half at square in the vertical direction. In the vertical direction for the whole journey. ठीक है. तो s कितना है? What is the total height covered, distance covered in vertical direction by the projectile? h. u कितना है vertical direction में? कौन बताएगा? How much is u in the vertical direction? u 0 है vertical direction में. We have given velocity in horizontal direction, not in vertical direction. तो हमारा vertical direction में u हमेशा 0 रहेगा. And what is the acceleration for downward motion? g. And total time taken from O to A point that we said is time of flight. तो हमने इसको पुट कर दिया. From here we can find the formula for time of flight. So time of flight is under the root 2h over g. So note it down. Time of flight का formula root 2h by g. This is the expression for time of flight. After time of flight, another term related to projectile is horizontal range. Horizontal range of the projectile. उसकी रेंज कहां तक है? कहां तक जाएगी प्रोजेक्टाइल? हाँ हाँ. Horizontal range is denoted by r. This is horizontal range. Total distance traveled by the projectile in horizontal direction. ठीक है. Total distance traveled by the projectile in horizontal direction. You can also say it is horizontal distance covered between this point and this point. ये point कौन सा है? Between a point directly below the point of projection. ये वो point है जो बिल्कुल projection के below है, and this is the point where it hits the ground. So you can also define horizontal range as
डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल रेंज का की डेफिनेशन लिखिए, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल in the horizontal direction, in the horizontal direction between a point vertically below the point of projection, between a point vertically below the point of projection and the point where it hits the ground, and the point where it hits the ground, and the point where it hits the ground. तो ये जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है. So let us derive an expression for this. Again, let us use s equal to ut plus half at square, but now in the horizontal direction. Let us use this equation now in the horizontal direction. ठीक है पुलकित? तो s कितना है horizontal direction में? r. Is there any velocity in the horizontal direction? Yes. u हमने horizontal direction में ही दी थी. टोटल टाइम कितना है? टाइम ऑफ लाइट. और एक्सेलरेशन हम कह रहे हैं ग्रेविटी जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, हॉरिजॉन्टल में नहीं एक्ट कर रही. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0. So r is equal to ut. Put the formula of t here. We get r is equal to u under the root 2h by g. So this is the formula for your horizontal range. तो ये दो characteristic definitions और expressions हैं related to projectile. So you must do this. डेप्थ में कंसेप्ट तो पता होना चाहिए ना, हम सिर्फ फॉर्मूले तो नहीं अब करवा सकते ना. एंड मिड सितंबर में आपके पेपर स्टार्ट हैं, मिड सितंबर से, ठीक है. वो भी बताएंगे आपको. चलिए, वेलोसिटी एट अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल. Velocity at a point. So let us draw tangent at a point. Suppose we want to find velocity at point P. So this will be given by drawing velocity tangent at that point. This tangent can have two components, horizontal component Vx and vertical component Vy, let us say. Okay. So when we find these two components, we can find the resultant velocity as well. So let us first of all find velocity in horizontal direction by using v equal to u plus at. So use v equal to u plus at in the horizontal direction. तो ये p पॉइंट आपका फाइनल पॉइंट है, ये वो आपका इनिशियल पॉइंट, ठीक है. सो व्हाट इज v फाइनल वेलोसिटी एट p पॉइंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? vx, ठीक है. आपकी फाइनल वेलोसिटी मतलब फाइनल पॉइंट पे जो वेलोसिटी है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो क्या है? That is Vx. What is the velocity, initial velocity at O point in horizontal direction? U. Acceleration due to gravity हम 0 लेते हैं horizontal direction. हमारी जो projectile है, it's a combination of two motions, horizontal and vertical. For horizontal projectile, in horizontal direction we have velocity, in vertical direction we have acceleration. तो उन दोनों को combine करके projectile motion आता है. So that means the horizontal component of velocity is u. We have found. Apply v equal to u plus at in the vertical direction now. What is the velocity at p point in vertical direction? Vy. What is the velocity at O point in vertical direction? 0. What is the acceleration due to gravity in the vertical direction? G. एंड टी ये तो किसी इंस्टेंट पे ले रहे हैं, ये टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है क्योंकि हम वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे ले रहे हैं.
तो ये स्मॉल टी आएगा, कैपिटल टी नहीं होगा. So we have found this component as well, Vy, so that is Gt. So how can we find the resultant? Under root V is under root Vx square plus Vy square. ठीक है, अगर हम वहां पे पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करते हैं, उनमें एंगल 90 डिग्री क्या है, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है. So V is under the root U square plus G square E square. So this is giving us velocity of the projectile at any instant of time. V is under the root U square plus G square T square. Is that fine? अब इसकी डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी. तो ये आपका रिजल्टेंट है. Let us make say it makes an angle beta with the first vector, वही जैसे हमने डेरिवेशन में किया था. So what is the formula? Tan beta. Tan beta is Vy over Vx. ठीक है. Tan beta is Vy upon Vx. Put the values. So beta is tan inverse Gt by U. From here we can also find direction of velocity at any point. So this is over with horizontal projectile. Everything related to horizontal projectile we have done. Now we will be doing the other type of projectile, oblique projectile. पहले ये देख लीजिए, एंगुलर ऑब्लिक. जब किसी एंगल पे हिट करेंगे वो प्रोजेक्टाइल ऑब्लिक होगी. एग्जाम्पल किक्ड फुटबॉल, जैसे कल मैंने आपको बताया था. मेन वही है, ज्यादा उसके क्वेश्चन भी आते हैं, पर ये भी चलो आपको बेस है, पता होना चाहिए. कोई डाउट यहां तक? यस, एनी डाउट स्टूडेंट्स? शुड आई रब देम? तो हेडिंग दे दो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल. हो गया? इसके आगे बस वो लिखा था कि v जो है अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर टी और ये डायरेक्शन. Okay, so oblique projectile is the object that is thrown at some angle, maybe with horizontal, maybe with the vertical. Angle किसी के साथ भी हो सकता है. तो like हम फुटबॉल को किक करते हैं, वो एक projectile. Is kite a projectile? बताओ. Is a flying kite a projectile? Kite है kite, वो projectile होगी. Kite projectile का example है कि नहीं? No. Kite is not a projectile. उसको तो हम हर टाइम पे कनेक्ट करके रखते हैं ना, उसको तो हमने फेंक थोड़ी दिया है ना. नहीं आ सकती वो. आप उसको थ्रो थोड़ी ना कर रहे हो. जब आप उसका स्ट्रिंग छोड़ दोगे तब वो प्रोजेक्टाइल हो जाएगी. हाँ, ऑब्लिक में. अब जैसे फुटबॉल को आपने किक करके छोड़ ही दिया ना, आप उसको छोड़ोगे तो वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा. कॉइन को भी आपने फ्लिक ऑफ कर दिया, छोड़ दिया, जहां जा रहा जाएगा. ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल. So suppose we kick a football at some angle to the horizontal. It follows a curved path. So it's a projectile. This is oblique projectile. Let us resolve u into two components, two rectangular components. This component is u cos theta and this is u sin theta. So here we won't be taking velocity 0 in the vertical direction. We have one component each in any direction. तो वेलोसिटी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो वर्टिकल में ही लेंगे, वो हॉरिजॉन्टल में अभी भी 0. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वी विल बी टेकिंग ओनली इन द वर्टिकल डायरेक्शन, नॉट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन.
ठीक है, चलिए पहले हम प्रूव करते हैं दैट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक. ट्रेजेक्ट्री मींस पाथ, द शेप ऑफ पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक. हेडिंग दे दो. तो जैसे हमने कल इसके लिए किया था, आज करते हैं डिराइव. शो दैट द ट्रेजेक्ट्री of a projectile is parabolic curved. Let us take any point P during the journey of this projectile. तो यहाँ पे इसके coordinates ले लेते हैं x by y is the vertical distance, x is the horizontal distance traveled by the projectile at any instant of time. ठीक है, जब भी इक्वेशन डिराइव करनी है तो x y लेना पड़ेगा. Let's apply s equal to ut plus half at square in the horizontal direction. Let's apply s equal to ut plus half at square in the horizontal direction. तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ horizontal direction में p पॉइंट तक? x. What is the component of velocity in horizontal direction? u cos theta t. और एक्सेलरेशन हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 है. ग्रेविटी इज एक्टिंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन. सी दिस स्टेप इज क्लियर. यहां से t आ गया आपका x अपॉन u cos थीटा. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. यहां से आपने t कैलकुलेट कर लिया. कोई डाउट यहां तक? Now let's apply s equal to ut plus half at square in the vertical direction. आप लगाते हैं vertical direction. s कितना है vertical direction में? y. u कितना है vertical direction में? u sin theta t plus half. What is the acceleration? ऊपर जा रही है ना प्रोजेक्टाइल, p पॉइंट पे माइनस g है, माइनस g t स्क्वायर. ऊपर जा रही है p पॉइंट. देखो ये यहां तक तो प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रही है, तो हम ये लेंगे माइनस. यू गेट y इक्वल टू u साइन थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन. सो पुट 1 into, पुट द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम 1 into, जैसे हमने कल ऑब्लिक के हॉरिजॉन्टल के लिए किया. सो पुट 1 into, you get y is equal to u sin theta t पुट करिए यहाँ पे x over u cos theta माइनस हाफ g, और t को स्क्वायर करके यहाँ पे पुट करो x स्क्वायर ओवर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. Is this step clear? u gets cancelled here, बस. तो y आ गया आपका x sin over cos is tan theta minus half g by u square secant square. 1 over cos is secant theta x square. So this is the equation of trajectory of a projectile. This is the equation of trajectory of a projectile. Got this? So it's very difficult. हाँ हाँ वो आ गई. So this is the equation of trajectory of a projectile, and it's a little bit complicated. Seems to be little bit complicated, but आप अगर स्टेप वाइज जाओगे, 2-3 बार न्यूमेरिकल में यूज करोगे तो आइडिया हो जाए. y is x tan theta minus half g by u square secant square theta x square. ठीक है. This equation can be compared to the standard equation of a parabola of higher order. ठीक है. जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला ऑफ हायर ऑर्डर है, उसमें एक टाइम पे x स्क्वायर होता है और x होता है दूसरी साइड पे y होता है. लाइक यस्टरडे आई टोल्ड यू x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. एक साइड x स्क्वायर एक y होगा. जो थोड़ा हायर ऑर्डर का पैराबोला होता है, कॉम्प्लिकेटेड पैराबोला,
उसमें एक्स स्क्वायर और एक्स होते हैं एक साइड पे, जैसे यहाँ पे है एक्स और एक्स स्क्वायर, एंड दूसरी साइड पे वाई होते हैं। तो आप लिखो दिस इक्वेशन कैन बी कंपेयर्ड टू द इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर पैराबोला, सेकंड ऑर्डर पैराबोला. This equation can be compared to the equation of a standard parabola of higher order या higher order parabola. This shows that the path of a projectile is always parabolic. It is always curved. Of a standard parabola of higher order. बच्चे आपको जो अब आए उनको बता दूं मैं, प्रोजेक्टाइल क्या होती है, जिस भी ऑब्जेक्ट को हम किसी इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो करते हैं और वो कर्व्ड पाथ फॉलो करती है, उसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं. जैसे फुटबॉल को किक किया, ये फुटबॉल को किक किया हमने किसी एंगल पे, ये एक प्रोजेक्टाइल. ठीक है, ये उसकी वेलोसिटी थी जिससे हमने थ्रो किया, उसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रिजॉल्व रेजोल्यूशन आता है ना आपको. बस हमने इन बिटवीन कोई पॉइंट ले लिया, वर्टिकल डिस्टेंस ये था, एक्स ये था, तो हमने एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल में, उसको एक को दूसरे में पुट कर दिया, कंबाइन कर दिया, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशंस. तो आपकी ये एक इक्वेशन आ गई. आई रिकमेंड कि अभी इसको लर्न मत करो, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट दिस इज कंपेरेबल टू द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला. तो इससे प्रूव होता है कि एक प्रोजेक्टाइल का पाथ कर्व्ड होता है, पैराबोलिक होता है. ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रूफ. साथ साथ नोट करते जाओ. देन हम इसकी भी टर्मिनोलॉजी करेंगे जो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड है. दो सेम है टर्म्स हमारी, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज. एक और टर्म यहाँ पे आ जाती है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, क्योंकि हमें नहीं पता ये कितना ऊपर जाने वाला है फुटबॉल. दैट डिपेंड्स अपॉन आवर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. कई बार क्या होता है कि हम बहुत लो उसको फेंक देते हैं, बहुत हाई फेंक देते हैं, फिर भी वो उसी पॉइंट पे जाके गिरता है. So that depends upon the angle of projection. ठीक है, you want to note it? So करो जल्दी करो. बाकी लिखिए इसकी. Now we are going to derive an expression for time of flight. Time of flight, capital T. Definition will remain the same. Time of flight is the time for the projectile to remain in the air. It is the time for which the football or for which the projectile remains in the air. Or in simple words, it's the time taken by the projectile to complete its journey. Okay, it's time taken by the projectile to complete its journey. It's time taken by the projectile to complete its journey. ठीक है, डेफिनेशन वही है. अब हम इसको डिराइव करते हैं. एक्सप्रेशन इसका, लेट अस से टाइम ऑफ फ्लाइट इज द सम ऑफ टू टाइम्स. हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में टाइम ऑफ असेंट है, और हाईएस्ट पॉइंट से वापस ग्राउंड तक आने का जो टाइम है उसको टाइम ऑफ डिसेंट बोल देते हैं. ऊपर जाने तक का टाइम है टाइम ऑफ असेंट, दूसरा बाय सिमेट्री सेम ही होगा, वो टाइम ऑफ डिसेंट है. ठीक है, बाय सिमेट्री whatever time the projectile will take to go from point of projection to the highest point will be same as the time taken by the projectile to come back from highest point to the ground. तो वो हम बोल देते हैं time of flight is sum of time of ascent plus time of descent. टाइम ऑफ असेंट को ले लेते हैं t1 और टाइम ऑफ डिसेंट को ले लेते हैं t2, एंड बाय सिमेट्री t1 is equal to t2. So we can write time of flight is twice of t1. Say this is equation number 1. तो हम अब टाइम ऑफ असेंट निकाल लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी डबल ऑफ
राइट। सो ये कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए P पॉइंट को रहने दो। हाईएस्ट पॉइंट ले लो, ये आपकी मैक्सिमम हाइट है, बाद में फाइंड करना है। तो यहां तक की जर्नी लेते हैं। अप्लाई V इक्वल टू U प्लस 80। वी आर टेकिंग O टू P पॉइंट। हम ले रहे हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू हाईएस्ट पॉइंट तक का की जर्नी। So let's apply V equal to U plus 80 in the vertical direction. We have to mention in which direction we are applying the equation. देखो हमने हर एक केस में अप्लाई किया, इसको बताया, मेंशन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में what is the velocity at P point, final point in the vertical direction? आप यहाँ पे वेलोसिटी अगर ड्रॉ करो, यू ड्रॉ द टेंजेंट दैट गिव्स यू वेलोसिटी, वो हॉरिजॉन्टल हो रही है ना, वर्टिकल तो नहीं हो रही। तो इसका मतलब इट इज 0। ठीक है, इन वर्टिकल डायरेक्शन द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट इज 0। व्हाट इज द वेलोसिटी एट इनिशियल पॉइंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन? दैट इज देयर u sin थीटा। ये क्या है? u sin थीटा। अब ऊपर जा रही है प्रोजेक्टाइल, तो a कितना है? माइनस g, और वहां तक का टाइम कितना है? उसको हमने बोला t1। हैव अ लुक एट ऑल दीज वैल्यूज, एक एक वैल्यू देखिए कैसे पुट की। अगर ये आपको क्लियर है तभी हम आगे चलते हैं। यस, y v is 0, y u is u sin theta and y a is minus g, y t is t1। यस, वो तो आपने पहले भी यही लगाया था। हम यहां तक माइनस जी लेंगे, यहां तक प्लस जी लेंगे। जब प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रही है अगेंस्ट ग्रेविटी तो माइनस जी लेंगे ना एक्सेलरेशन को, जब डाउनवर्ड जा रही है तो प्लस जी लेंगे। ठीक है, तो यहां से अब आपका आ गया u sin थीटा इज इक्वल टू जी t1 और t1 इज इक्वल टू u sin थीटा बाय g। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, your formula for time of flight is 2u sin theta upon g. So note down and learn the formula for time of flight. Numericals में ये फॉर्मूले आपको यूज करने पड़ेंगे और ये आपके टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से ज्यादा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, एंडलेस न्यूमेरिकल्स। So note down the formula. Time of flight will be 2u sin theta upon g. What is u here? Velocity of projection, velocity with which the projectile is fired. Got this? पहली डेरिवेशन क्लियर है छोटी सी। अब सेकंड पार्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करते हैं। या पहले करते हैं मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। तो सेकंड टर्म हेडिंग दे दो, प्रोजेक्टाइल कितनी हाई गई, हाइट कितनी थी उसकी, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड? लेट्स फाइंड आउट। हाँ, so maximum height attained is denoted by symbol h as I have indicated here. So this now we are going to find. Now we will be using third equation of motion again in the vertical direction and again between O and P points. तो हमारे particular same ही रहेगी। V कितना था वही 0 ही रहेगा वहां पे, u कितना था वही सेम, u sin थीटा लिया हमने, और एक्सेलरेशन कितनी रहेगी वही माइनस जी। बस डिस्टेंस कितना है P पॉइंट तक, वो है h, बाकी सारी वैल्यू सेम है। Just we have used a different equation of motion. In place of first we have used third, right? देख लो पहले कैसे वैल्यूज पुट की, एनी डाउट? ठीक है, वी यू ए वही यूज किए हैं हमने, क्योंकि हमने वर्टिकल डायरेक्शन में लिया और वही दो सेम पॉइंट्स ओ एंड पी। गॉट दिस? लेट अस सॉल्व नाउ। सो माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा is equal to minus 2gh. Negative sign gets cancelled and we get the formula for
maximum height attained u square sine square theta over 2g. So you have to be very particular in learning these expressions. U भी सब में है, sin theta भी सब में है और g भी सब में, t में भी था, h में भी है. So very closely resembling expression, but you have to make it out. अगर आपका फॉर्मूला न्यूमेरिकल में रॉन्ग हो जाता है तो सारा ही रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, that's why. So this was our second expression. Noted down, maximum height attained. और कैन यू टेल दिस मैक्सिमम हाइट अटेन्ड कब मैक्सिमम होगी? जब साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा. तो वो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड मैक्सिमम कब होगी? व्हेन दैट विल बी u स्क्वायर ओवर 2g एंड फॉर एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. जब आप वर्टिकली अप थ्रो करते हो बॉडी, तब जब आप वर्टिकली अप थ्रो करोगे तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड विल बी मैक्सिमम एज कंपेयर टू एनी अदर एंगल ऑफ बॉडी. ठीक है, चलो वो तो डिस्कशन थी. लेट अस डिराइव द थर्ड थिंग नाउ, हॉरिजॉन्टल रेंज. थर्ड पैरामीटर इज हॉरिजॉन्टल रेंज, कैपिटल R. देयर इज अ लिटिल डिफरेंस इन द डेफिनेशन. ये है R आपका डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बट नाउ द पॉइंट्स आर डिफरेंट. ये क्या है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, and this is the point where it hits the ground. वहां पे हमारा था पॉइंट वर्टिकली बिलो, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है. डायरेक्टली it is the distance covered by the projectile in horizontal direction between the point of projection and the point where it hits the ground. तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रही है, that is called horizontal range. लिखिए definition, write down. It is the distance covered by the projectile. It is distance covered by the projectile in horizontal direction. Distance covered by projectile in horizontal direction between the point of projection and the point where it hits the ground. Between the point of projection and the point where it hits the ground. तो ये घर से करके लाना, थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ. आपने अब यूज करनी कौन सी इक्वेशन रह गई? सेकंड. S equal to ut plus half at square you will apply now in horizontal direction. So let me see कैसे केयरफुल आप, और पूरी जर्नी के लिए between O and Q point आप इसको अप्लाई करोगे between O and Q point for the whole journey. ठीक है, तो पूरी रेंज लोगे, एस आपका टाइम, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, लाइक दैट. तो पुट करके कल मंडे को आई लास्ट कि क्या आपका एक्सप्रेशन आया है. हाँ जी, u cos थीटा, हाँ वही है, वही आ जाएगा क्योंकि आपका ए तो 0 ही आ जाएगा ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. वहां से आपका फॉर्मूला निकलेगा.